Hello guys, hello everyone. I'm Lohit Jindal, founder and director at Cortex Classes. So guys, I welcome you back in our next video of Exam Booster series. So guys, today we are going to see some questions on surface areas and volumes, right? उस चैप्टर पे देखेंगे. So far हमने almost काफी सारे chapters cover कर लिए हैं of class 10th major chapters, and this is kind of the second last chapter, and after that we'll do some questions in the next video about probability. Okay, moving forward. Okay, so guys, today let's see the chapter of surface areas and volumes, right? So guys, just one request, है ना, as I will show the questions and move forward. Just one thing, आप pause करो वीडियो को, क्वेश्चन सॉल्व करो खुद से, ट्राई करो, फाइनल आंसर निकालो एंड तक, and then watch the video solution and confirm your answer. So that will give you the maximum learning outcome. Okay, I'll assure you, आप ऐसा करके देखो, even though you might feel कि टाइम ज्यादा लग रहा है कि उतना आउटपुट नहीं आएगा, but I assure you you'll find it very very useful. उसी तरह से आपकी actual learning होगी. Okay, so without any further delay, let's see the questions. Okay, so the first question, here it is. Okay, let's see. So guys, a heap of rice is in the form of a cone of diameter 9 meter and height 3.5 meter. So guys, first of all, in such kind of questions, first of all, जो सबसे basic mistake होती है ना, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करने के बाद भी हो जाती है, दैट इज डायमीटर और रेडियस में वैल्यू डालते हुए गलती. ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर यू राइट द रेडियस. ओके, तो गाइस कोन की फॉर्म में होती है, आपको पता ही है कोन कैसा रहता है, राइट? सो अगर आप, इसने तो सिंपली ये बोल दिया ना कि चावल डालते जा रहे हो, सो इट विल फॉर्म अ हीप. सो गाइस, सिंस डायमीटर इज 9, मेक श्योर रेडियस कितना है, दैट इज 9/2, और यू कैन से 4.5 मीटर, राइट? एंड हाइट कितनी है, दिस इज 3.5 मीटर, right? The height is 3.5 meters. So now guys, we need to find two things. Find the volume of rice, कितना rice का volume है, and how much canvas cloth is required to just to cover the heap. So basic formula, basic method. So guys, the first thing, volume. What is the volume of the cone? 1/3 pi r square h. So when we put in the values, 1/3. Okay, so now guys, it's up to you. Maximum times आप 22/7 put कर सकते हो, right? Into radius का square. So guys, 4.5, or you can rather put 9/2 into 9/2. मैं स्क्वायर को इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो, कैलकुलेशन थोड़ा बेटर लगेगा आपको, है ना. 9/2 स्क्वायर हो गया, तो 9/2 into 9/2 लिख दिया, एंड द हाइट इज 3.5, विच इज अनदर 7.7/2. सो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व गाइस, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, दिस 3 विल कैंसिल 9 for 3, एंड दिस 2 कैन कैंसिल इट for 11. So guys, you can see here क्या बन गया कैलकुलेशन, 9 into 3 27, 27 into 11 is 297. Let me check, right? Yes, 297 upon 4, right? So that is the calculation, 297/4. तो guys, how much it will be, देखो 300 से अगर आप डिवाइड करते 4 को तो 75 आता, उससे 3 कम है, so 0.75 lesser, 0.75 lesser than 75. So your answer should be in this case 74.25. okay, 74.25 क्या guys, this thing should be clear. पेपर में ये नहीं भूलना. another mistake is, common mistake is units भूल जाना. okay, that is the most basic another mistake. तो 74.25 मीटर क्यूब, तो फर्स्ट थिंग हमने निकाल लिया. सेकेंड थिंग, now guys, to find the canvas cloth जो इसको कवर करेगा, that implies we need to find this surface area, this one, right? बाहर का surface area. So we know that area, that curved surface area is given by pi r l. So for that we need to find this slant height L, है ना, तो उसको पहले फाइंड करते हैं. ओके, सो हाउ मच इज इट, तो L इज इक्वल टू, आप इसको गाइज लिख सकते हो 3.5 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर का अंडर रूट. सो गाइज, व्हाट इज 3.5 का होल स्क्वायर, दैट इज अबाउट 12.25 प्लस अनदर 45 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 20.25. okay, so when you calculate, this will be the whole squares. So 20 plus, okay, 20 plus 12, 32, this is 32.5 का अंडर रूट. So guys, the interesting thing is, जब आपका इसका स्क्वायर रूट करने जाओगे ना, I assure you, let me check on the calculator as well.
जस्ट क्रॉस वेरीफाई रूट ऑफ 32.5 यस। तो गाइज एक्चुअली होता क्या है, ये जो 32.49 है, 32.49 का एग्जैक्ट होल स्क्वायर एग्जिस्ट करता है। ओके, लेट मी चेक। यस, सो दैट इज 5.7। एक्चुअली क्या होता है 57 का स्क्वायर। ओके, हाउ मच इज 57 स्क्वायर? दैट इज 3249। इसकी वैल्यू होती है 3249। So basically 32.49 is 5.7 square. So you can approximate it as 5.7 meters. Okay. अगर आप स्क्वायर रूट करोगे इसका आ जाएगा वहां से, राइट? सो गाइज व्हाट इज द एरिया? ठीक है, सो पाई इज 22/7 इनटू रेडियस अगेन 9/2 इनटू 5.7। ओके, दिस टाइम अराउंड यू विल हैव टू कैलकुलेट, थोड़ा सा कैंसिल हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा। 2 ये 11 पे। Guys, rest of the things you'll have to calculate. देखो 99 into 5.7 upon 7, थोड़ा कैलकुलेशन इजी कर सकते हो, बिकॉज 5.7 into 100 is 570 minus 5.7. So this will be about 6 माइनस करेंगे 570 में से, तो 564.3 upon 7. So what is 564.3 by 7? Okay. ओके, आई कैलकुलेट। ओके, नो इश्यूज। तो एरिया कितना आएगा गाइस? 56 को डिवाइड किया 8, 4 के लिए 0, 43 के लिए 6 एंड देन यू विल लेफ्ट विद 10। ओके, 80.61 मीटर स्क्वायर। सो दैट विल बी अवर आंसर, राइट? सो गाइस द फाइनल आंसर्स टू दिस क्वेश्चन शुड बी 74.25 मीटर क्यूब एंड एरिया ऑफ द कैनवस वुड बी 80.61 मीटर स्क्वायर मीटर। ओके, या मीटर स्क्वायर जैसे भी बोलना है। Okay, so guys, this was an easy one that we kept basic formula on cone, right? All right, let's move on to the next question. Let's check the answer as well. So 74.25 and 80.61 meter square. So that is the final answer, right? I hope it is clear. So let's move on to the second question. All right, so this one is a bit different. So water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter. Okay, एक pipe है. Okay, let's understand. It's something like this. Pipe है guys. इसका diameter है 14 centimeter. So as I told you, always write down the radius only. So radius will be 7 centimeter. ठीक है. So keep it in mind guys. Whenever कोई radius, diameter जो भी ये 7 के multiples में हो ना, that is because मतलब that is in the sense, that is why it is done is कि 22/7 होता है ना पाई को, तो 22/7 यूज करोगे तो 7 कैंसिल हो जाए इजीली, तो इसलिए जनरली दिया जाता है ऐसा, है ना, 7 के मल्टीपल्स में। तो गाइज इसमें से क्या हो रहा है, वाटर इज कमिंग आउट। तो वाटर किस रेट पे बाहर आ रहा है वो आपको पता है। यू वांट टू फिल अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। तो पूछा जा रहा है कितना टाइम लगेगा 21 सेंटीमीटर हाइट बढ़ने में। सो लेट अस कैलकुलेट द वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड फॉर दैट। पहले ये ढूंढते हैं टोटल वॉल्यूम भरेगा कितना इसमें। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल पॉन्ड, क्यूबॉइडल पॉन्ड? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज गिवन बाय LBH। सो लेंथ कितनी है गाइज 50 इंटू 44 इंटू हाइट इज 0.21। मीटर में डालना है गाइज, डोंट मेक दिस मिस्टेक। हाइट सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 0.21। सो दिस इज इन मीटर क्यूब। गाइज यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसको सॉल्व क्यों नहीं कर रहे। आई राइट इट दिस वे ओनली। ओके, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड और देखा है ना, बच्चे इस कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट कर देते हैं इसमें। यू डोंट नीड टू डू इट एक्चुअली, जस्ट लेट इट बी, इसी फॉर्म में छोड़ो। ये आंसर थोड़ी ना, वैसे भी आपको तो टाइम ढूंढना है ना। तो जब टाइम ढूंढना होगा फाइनल एक्सप्रेशन में, देन यू विल सी द टर्म्स विल गेट कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। सो यू डोंट नीड टू एक्चुअली कैलकुलेट दिस। ये गलती मत करना कि इसको मल्टीप्लाई करने बैठ गए, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड गाइज, वाटर इज कमिंग आउट एट व्हाट रेट, है ना। दैट इज बेसिकली कितना पानी आ रहा है पर यूनिट टाइम, पर आवर, है ना। सो वॉल्यूम पर टाइम कितना फ्लो हो रहा है वो हम दिखते हैं। सो हाउ मच इज वॉल्यूम गाइज? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ और वेलोसिटी आप कह सकते हो यहाँ पे, है ना। सो व्हाट इज दिस V by T? आई विल शो यू गाइज। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ अपॉन टाइम। थोड़ी सी फिजिक्स का लॉजिक बताऊंगा यहाँ पे, है ना। यू कैन राइट दिस एज A इंटू L by T। कितना लेंथ पानी का बाहर आ जाता है T टाइम में, राइट। लेट्स से L लेंथ ऑफ वाटर, L लेंथ ऑफ द पाइप के अंदर जो पानी था वो बाहर आ रहा है, ठीक है, T टाइम में। सो दैट द वॉल्यूम विल बी A इंटू L। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका जो है लेट्स से A है, तो A इंटू L हो गया अपॉन T। नाउ बट व्हाट इज A इंटू L? L by T, दैट इज वेलोसिटी।
जो हमें दी हुई है 15 किलोमीटर पर आवर पे, है ना। सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन, व्हाट इज एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू वी. So guys, what is the volumetric flow rate? We have found volumetric, this was volumetric flow rate. Okay. Okay. So how much is this? So pi is 22/7 into radius is 7 का square. यहाँ पे again guys वो सेंटीमीटर में था, तो let us write as 7/100. Okay. So to keep it easy, 7/100, 7 सेंटीमीटर है, so 7/100 into 7/100, right? Pi r square into velocity कितनी है? 15,000 लिख देंगे मीटर में, किलोमीटर पर आर है ना, सो इट इज मीटर पर आर, इस यूनिट्स में रखते हैं, ठीक है. सो आई एम रिप्लेसिंग इट इन मीटर्स पर आर, किलोमीटर्स में था, ताकि यूनिट सेम रहेगा, इस मीटर क्यूब पर आर हो जाए. अब नाउ ये नेट यूनिट्स ऑफ दिस थिंग विल बी मीटर क्यूब पर आर, क्योंकि वॉल्यूम अपॉन टाइम किया हुआ है. नाउ अब स्मॉल थिंग्स यू कैन कैंसिल आउट, लाइक 2 जीरोस 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे इसके साथ, राइट, एंड अनदर 7 विल गेट कैंसल्ड. रादर यू कैन कैंसिल 5 एज वेल, दिस इज 3, दिस इज 2. थोड़ा सिंप्लीफाई तो हम कर सकते हैं. सो व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट? बेसिकली कहने का मतलब ये है गाइस, पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम आ रहा है, पर यूनिट आर, पर आर बेसिकली, है ना. सो हाउ मच इज इट? 2 भी कैंसिल कर देते हैं, दिस 2 विल कैंसिल इट फॉर 11. So again, you don't need to multiply guys, just write it down. 11 into 7 into 3 meter cube of water per hour, है ना. तो 11 into 7 into 3 मीटर क्यूब पर आवर वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है. सो टाइम कैसे निकालेंगे इस, हाउ मच टाइम वुड इट टेक? टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट. आई विल राइट दिस फ्लो रेट. ओके, तो हाउ मच इज इट, देखो, है ना, क्योंकि गाइस वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको क्या बता रहा है कि पर आवर कितना भरता है, और टोटल कितना भरना है वो हमें मालूम है, तो उससे डिवाइड कर देंगे. तो 50 इंटू 44 इंटू 0.21, or rather we can write it as 21/100 as well. 21/100. ओके, इसको डिवाइड किससे करना है? 11 इंटू 7 इंटू 3 से, राइट, दैट्स इट. सो लेट्स सी. तो गाइज 11 विल कैंसिल 44 फॉर 4, 50 100 को 2 पे कैंसिल कर देगा, 2 विल कैंसिल 4 फॉर 2, दैट्स इट. एंड 7 इंटू 3 21 भी कैंसिल हो गया. सो वेरी सिंपलिस्टिक कैलकुलेशन. सी गाइज, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, जनरली टर्म्स टेंड टू कैंसिल. जनरली नंबर्स ऐसे दिए प्रोवाइड किए जाते हैं क्वेश्चन में, ताकि टर्म्स कैंसिल हो जाए मेजॉरिटी. सो द फाइनल आंसर इज गाइज 2 आवर्स, कि 2 घंटे लगेंगे आपको वो क्यूबॉइडल टैंक को 21 सेंटीमीटर तक भरने में, राइट. सो आई होप गाइज ये क्वेश्चन क्लियर है. द मेन थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस थिंग इज, आई अंडरस्टैंड कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो पता ही होंगे. द मेन थिंग अबाउट कैलकुलेशन इज कि जनरली जरूरी नहीं है कि मिडिल स्टेप्स में सब कुछ मल्टीप्लीकेशन या कुछ में है तो कैंसिल आउट करना ही है, मतलब पूरा मल्टीप्लाई करना ही है, दैट इज नॉट नेसेसरी. हाँ, कैंसिलेशन होती है वो कर लो, बट मेजर कैलकुलेशन या लास्ट स्टेप तक जाके ही वेरिएबल्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो, दैट इज ऑल्सो यूजफुल. मैनी टाइम्स इट विल सेव यू टाइम. ओके, बिकॉज नंबर्स ऐसे दिए जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स की टर्म्स कैंसिल हो जाए नंबर्स आपस में. ओके, ऑलराइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू ऑल. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गाइस, और आंसर भी कंफर्म कर लेते हैं. सो दैट इज देयर 2 आवर्स, राइट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. ओके, so guys, 16 glass spheres each of radius 2 centimeter, okay, 16 spheres of radius 2 centimeter are packed into a cuboidal box. So let us assume you have a cuboidal box, इसके अंदर 16 balls आप भर रहे हो ऐसे, है ना, whatever it is. तो cuboidal box के dimensions आपको क्या दिए हैं? 16 into 8/8, right, that are the dimensions. Then the box, okay, I think board नहीं आएगा, box आएगा यहाँ पे, no issues. Let me correct it quickly. Okay, then the box is filled with water. ओके, बॉक्स को पानी से भर दिया, बाकी जगह कहां पे आएगा? यहाँ पे पानी आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द स्पेस विल बी टेकन अप बाय वाटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द बॉक्स. सिंपल. सो वेरी बेसिक क्वेश्चन गाइज. सो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, राइट. नाउ हाउ मच इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? दैट इज वेरी सिंपल, 16 into 8 into 8 LBH, right. I'll write down the formula once. Okay, so that is L into B into H, that is given, minus volume of spheres कितना है? Total spheres कितने हैं guys? 16 है. So there are 16 spheres and each sphere has the volume 4/3 pi r cube, right. You should know these formulas. So now let's substitute.
What is LBH? So that is 16 into 8 into 8. सब unit same है, सब centimeter में. So we'll find the answer in centimeter cube, right? So 16 into 8 minus 16 into 4 upon 3 into pi, that is 22 by 7 into r cube, that is 2 cube, right? So not that easy of the question. 16 आप कॉमन निकाल सकते हो गाइस. इफ यू वांट टू यू कैन टेक समथिंग कॉमन. रादर 16 into 8 कॉमन निकाल सकते हो. 4 भी कॉमन आ जाएगा. देखो 16 into दिस इज 16 into 8 into 4 और 2. गाइस 22 में से भी 2 ले लेते हैं. सो यार रादर यू कैन सी 16 into 8 पूरा ही कॉमन आ जाएगा. दैट विल गिव यू 1 minus 11 by 21. थोड़ा देखो सिंपल हो रहा है ना. सो 16 एक पूरा कॉमन आ गया. 4 के साथ एक 2 22 में से ले लिया एक 2, तो 8 पूरा बाहर आ गया और 2 क्यूब वाज 8 वो भी बाहर आ गया. सो यू आर लेफ्ट विद 11. 22 में से 2 निकाल लिया था, 11 बचा, नीचे 21 है. सो अपॉन टेकिंग द एलसीएम गाइस देखो क्या बचेगा. 21 minus 11 न्यूमरेटर में, दैट इज 10 upon 21. सो ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, राइट. सो 8 into 8 64. सो बेसिकली 2 क्यूब एंड 2 power 4. सो दैट इज 2 power 10, राइट. This is 2 power 4, 2 cube, 2 cube. So 2 power 10 into 10 by 21. So 2 power 10 is 10240 by 21. So guys, now you can basically divide it. 21 into ये 4 पे कटेगा 84. So you'll be left with 18. 184 will cancel for another 7. तो 140 नहीं 8 पे, sorry, 184 will cancel for 8. So which is 168. 184 and 168, right? कितना डिफरेंस आ गया देखो, 16 है ना. So 160 will cancel for another you can say 7, 147, right? 487 आ गया. So 147, 130. So round about guys, this is the value 6 के आसपास. So 487.6 meter cube, centimeter cube. Round about this should be the value. Okay, I'll just check it with a calculator quickly as well. Yes, so that is it, 487.6 centimeter cube. Okay, let's check the answer as well. So that is it, 487.6, right? वही हमने आंसर निकाला है. So this is correct. Okay, so yes guys, देखो आप कैलकुलेशन कंपैरेटिवली आपने इजी कर लिया ना. You could have done this way as well, it's fine, but बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने पड़ते है ना. So this way it became a bit easier. तो कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स गाइस, बिकॉज आई नो फॉर्मूलाज तो सब लोग याद कर ही लेते हैं देखो, और इतने सारे क्वेश्चन करके आपको बेसिक आइडिया तो समझ में आ ही जाएगा. वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग दीज वीडियोज इज टू अंडरस्टैंड कि कैलकुलेशन के साथ कैसे डील करना है. मेनी टाइम स्टूडेंट स्ट्रगल विद दैट एज वेल. ओके, तो ध्यान रखना है इसका. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so a milk container of height 16 centimeter, it is made of metal sheet in the form of a frustum of a cone with radii of its lower and upper ends as 8 and 20. So guys, it's like something like this. Okay, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं. So this is the example of the frustum. Okay, so lower radius and upper radius are 8 and 20 है ना. So this is 20 and this radius from this point onwards, this is 8 centimeter, right? And इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मिल्क. हाइट कितना है, 16 सेंटीमीटर. This is 16 centimeter. ठीक है. So guys, I'll not use the directly the formula of frustum. Okay, I'll try to basically derive it, है ना. थोड़ा एक बार डिराइव करने की कोशिश करते हैं, दिखाता हूं आपको कैसे डिराइव करते हैं. ओके, सो बेसिकली गाइस, फ्रस्टम इज लाइक अ कोन जिसका एक हाफ काट दिया है, राइट. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कंप्लीट द कोन लाइक दिस. लेट्स से वी कंप्लीट द कोन, ओके, एंड एक्सटेंड दिस. ओके, सो क्या करेंगे गाइस, नाउ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर. You can apply basic proportionality theorem, or you can say the similarity thing. So let's say this distance is x, right? Now guys, you know this triangle and the bigger triangle are similar. So, or you can say tan theta bhi aap le sakte ho. You can say tan theta is also the same in the smaller triangle and the bigger triangle.
So what do we get from this? X upon x plus 16, right? X इस साइड से लिया और पूरा कितना है x plus 16. This ratio should be same as 8 upon 20, right? Similarity से आएगा 8 upon 20 will be equal to x upon x plus 16, not x by 16. Okay, keep it in mind. So guys, what will this give us? This will provide us with the value of x. ठीक है, आप देख सकते हो 4 को ये 2 पे और ये 5 पे कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, we'll get 5x equal to 2x plus 32. So you'll get 3x equal to 32. So guys, that will give us x equal to 32 by 3 centimeters. Okay, all right. Okay, तो guys x आ गया हमारे पास. So what is the total height of the cone? Basically हम एक solving करते हैं. देखो guys, so x निकालने का purpose क्या है? Now guys, I can find the volume of the frustum, right? This frustum by finding the total volume of the cone, bigger cone minus the smaller cone. So volume of the frustum is given by 1 upon 3 pi r square h, right? For the time being formula ऐसे लिख लेते हैं बड़े कोन के लिए, and छोटे के लिए 1 upon 3 pi r square h. So what you will see guys, 1 upon 3 pi तो common आ जाएगा. What is a bigger radius? Square. Okay, bigger radius is 20 square into h is x plus 16. So that is guys 80 by 3, right? So basically what I have done is x plus 16 कितना होगा? 16 plus 32 by 3. So upon taking LCM, 16 into 3 is 48 plus 32. That will give you 80 upon 3. So वो 80 by 3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, माइनस स्मॉल रेडियस का स्क्वायर कितना है? 8 स्क्वायर इंटू height is how much? 32 upon 3, right? So guys, again you can take some time terms cancel, common basically. 1 upon 3 common निकाल सकते हो. So 1 upon 9 हो गया यहाँ पे, पाई हो गया, और क्या कॉमन आ जाएगा ऊपर? यू कैन डू इट, कैलकुलेट कर ही सकते हो, ये भी कर सकते हो. बाकी 8 20 स्क्वायर थोड़ा देखना पड़ेगा, 400 इंटू 8, चलो कर देते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो 80 इंटू 220 स्क्वायर, 400 इंटू 8, तो दैट इज 32. सॉरी गाइज, सो 32 and there are 3 zeros. 32,000 minus 8 square into 32. So this is 2 power 6 and 2 power 5. This is 2 power 12. So let me check just quickly. Okay. So 20 square into 80, right? That is 32,000, right? Minus 8 square into 32. So 2048. Yeah. 2 power 6. Yes, this is 2 power 11. So 2048. So guys, volume आ रहा है आपके पास 1 upon 9 into 22 by 7 into 32,000 minus 2048 is 29,052, right? थोड़ा अजीब सा लग रहा है. So 29,052, let's see, 7 से डिवाइड नहीं होता है, and does 29,052 divides by 9? No. Yes, it is getting cancelled, right? देखते हैं, देखो. So guys, 9, this cancels it for 3, 27, then 20 2 पे जाएगा, right? Then 25 again goes for 2, then 72 goes for 8. So 3 2 2 8. Just leave it like this. Okay, बाद में calculate कर लेंगे. So guys, this is 3228 into 22 by 7. What are the units? Guys, इसका ध्यान रखना है. This is centimeter cube. Okay, guys, but हमें एक प्राइस किसका दिया है? पर लीटर दिया हुआ है. Now let us find the cost of milk. What is the cost? So guys, volume हमने निकाल लिया है. So I have to convert it into liters. So guys, you should know guys, 1,000 centimeter cube is 1 liter, right? I'll tell you how to remember it. So guys, आपका जो बॉटल होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो आप, कुछ भी ऐसे कोल्ड ड्रिंक वाटर का बॉटल होता है ना, बिस्लेरी का बॉटल आता है, 1 लीटर का जो बॉटल होता है, दैट इज बेसिकली 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना? यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस कि 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का अगर आपके पास एक क्यूब होगा ना, उसके अंदर वो पूरा पानी आ जाएगा उसमें, कंटेनर में. ठीक है, सो 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सीसी, basically 1000 cc is 1 liter. Okay, so to convert it into liters, I have to divide it by 1000. So 3228 into 22 by 7 by 1000.
and I have to further multiply it by 22 for cost per liter. So guys, yes, थोड़ा calculations अब ज़्यादा हो जाएगा. So but yes, you can multiply and then divide by 7. थोड़ा better रहेगा. So into, I'll use calculator in this case guys. I will not waste much time because यहाँ पे calculation करना है, सिर्फ multiply करना है. Okay, and then divided by 7. Okay, let me check it quickly. Okay guys, I made a small mistake here. So यहाँ पे 299 आना था, right? I'm sorry about this. Calculation सही कर लेते हैं. So that will change it by another 100. So 3328 हो जाएगा. I'm sorry about that. Okay, थोड़ा calculation correct कर लेते हैं. 3328 है. So this is 3328. Okay. So once you calculate this guys, you'll get about 230. Okay, let me check the calculator now. 3328. थोड़ा calculation करना पड़ेगा. Okay, so that will give you guys 230.10. So these many rupees. I'm sorry about the calculation guys, थोड़ा सा यहाँ पे mistake हो रहा था. Okay, so now we have corrected it. So guys, the answer would be 230.1 rupees. Okay, let's check the answer. So yes, 230.12. Okay, तो ये वाले क्वेश्चन में guys थोड़ा calculation was cumbersome, तो values ऐसे नहीं दी हुई थी कि cancellation हो इनका, right? So क्या कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन से भी डील करना पड़ता है, right? So you'll have to calculate it a bit. बट यस, मेजर कैलकुलेशन हमने लास्ट पॉइंट के लिए रखे हैं, तो उस पे जाके ही करें. ओके, सो दैट इज अनदर थिंग लर्निंग फ्रॉम दिस. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आई होप दिस मच इज क्लियर. ओके, फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम इस तरह से आप निकाल सकते हैं. ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज a hemispherical bowl of internal radius 9 centimeter is full of liquid. Okay, hemispherical bowl था. Okay, so this is hemispherical bowl like this. This is filled with liquid. अब आप क्या कर रहे हो guys, इसको एक cylindrical shaped bottle में डाल रहे हो. You're putting it in a cylindrical shaped bottle like this, right? Like आपने कोई चीज बनाई है खाने की, let's say आपको उसको glasses में डाल रहे हो, right? Cylindrical glasses. तो जिसका radius कितना है? So write it like this. Radius is 1.5 centimeter, right? And height is 4 centimeter. और hemispherical के लिए क्या था? This is 9 centimeter. Right? How many bottles are needed to empty the bowl? So basically guys, total volume of the bowl should be equal to what number of bottles? Okay, what is the volume of the bowl? So guys, since it is hemisphere bowl, है ना, it will be half of the volume of a sphere. So this will be 2 by 3 pi r cube. Okay, so 2 by 3 pi into कितना है 9 क्यूब. ठीक है, 9 क्यूब क्या, सेंटीमीटर क्यूब. ओके, कीप इट इन माइंड, समटाइम्स इट इज नीडेड. इसमें गलती हो जाती है, यूनिट्स जब अलग अलग दिए होते हैं. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल, राइट? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वन बॉटल? दैट इज सिंपली पाई आर स्क्वायर एच, राइट? दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो कितना आएगा गाइस, इसको पाई को एज इट इज रखने दो, विल सी दैट इट विल गेट कैंसल्ड. सो पाई इंटू 1.5 स्क्वायर, rather you can write it as 3 by 2 का whole square into height is 4 centimeter. So this is also centimeter cube. Now guys, the number of bottles, how will we get कि कितने bottles में डलेगा उतना volume? You can rather say volume of the bowl should be equal to n times the volume of one bottle. तो कितने bottle भरेंगे? So the value of n will be volume of bowl divided by how many volume of one bottle से divide करेंगे तो कितने bottles use होंगे वो आ जाएगा. So what, that's why I did not calculate it earlier. तो calculate मत करा करो guys बीच step में, last step पे जाके put कर दो as it is multiplication. So we get 2 by 3 pi into 9 cube. So 9 into 9 into 9 लिख लेते हैं, divided by pi into 3 by 2 का square है तो 3 by 2 into 3 by 2 into 4, right? Just like it, write it like this. So now let's start cancelling. So pi and pi gets cancelled. तो guys ये वाला 3 इस 9 को 3 पे कैंसिल कर देगा, and there are 2 3s in the denominator, another 9 will go out, है ना? ये 2 और 2 इस 4 को कैंसिल कर देंगे. So pretty much everything is cancelled. So by guys क्या बचा ऊपर, 2 into 9 into 3, right? 9 into 2 is 18 and 18 into 3 is 54 bottles.
right? So the final answer to this question, guys, should be 54 bottles. Simple enough, right? Total volume of the sphere, hemisphere, total volume जितना था पानी का divided by each bottle's volume. तो आपके पास आ जाएगा कितने bottles use होंगे. So the final answer should be 54, right? I hope it is clear. Simple enough question, right? So guys, that was the last question. I hope everything was clear. And I know there could be many different type of questions. I tried to keep such questions जो देखने में तो simple हैं, but उनमें calculation mistake हो सकता है या किस तरह के mistake होते हैं. I wanted to discuss that. Otherwise, this chapter I know कि आप लोगों को generally समझ में आता है. All the problem is mainly I think most of the students get stuck in the calculation and make some mistake. तो उसका मैंने आपको तरीका बताया इस इन क्वेश्चंस के थ्रू कि कैसे कैलकुलेशंस आप यूज कर सकते हो, कैसे आप कर सकते हो. तो गाइज हम एक क्वेश्चन में अटके थे जहां पे कैलकुलेशन ज्यादा था, है ना, दिस वन. बट जनरली गाइज दिस हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स द नंबर्स आर सच दैट कि टर्म्स कैंसिल होते हैं, जैसा कि इसमें भी था. ओके, एंड मीन द अदर पोर्शंस. ओके, सो आई गो गाइज, आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों. ठीक है, एंड इफ यू गाइज फाइंड दिस वीडियोज यूजफुल, इट विल बी ग्रेट अगर आप गाइज हमें इस चैनल को रिकमेंड कर सको. इट विल हेल्प अस अ लॉट एंड इट विल हेल्प अस boost our morale. You can help us in this way. Okay, so that will you know enable us to keep coming up with such videos. And guys, as I told you, you guys can mail us the questions. We'll try to incorporate those questions in the next upcoming videos. All right, that's it guys. We'll see you in the next video with the last chapter, probability. Okay, we'll see you in the next video. Till then, all the best. Bye bye, take care.